पूर्णिमा का प्रकाश भर देती है। Very good afternoon to one and all. We, Anju Jaiswal and Renu Verma ma'am, welcome you all on the behalf of entire MTPS family. We are deeply honored to welcome Honorable Param Pujya Param Tapasvi Pujya Babaji, most respected Honorable Mahamandaleshwar Swami Shri Shyamdas Ji. We are fortunate that such a great scholar is along with us. I would like to welcome Honorable Swami Shri Himati Muni Ji, Honorable Swami Shri Jagdishanand Ji Maharaj Ji, Most Honorable Professor Suresh Chandra Sharma Ji, Most Worthy Swami Shri Brahmacharya Ji, Most Honorable, Most Loving Dr. Sasi Kulbe Ma'am, Most Admiring Mahan Shri Hanuman Das Ji, Honorable Swami Shri Omkar Nandan Ji, respected Dr. Gaba Ma'am, and all the management members, all our dear colleagues, all my dear lovely students, it is our privilege and pleasure to welcome you all. The fragrance of flowers spreads. The fragrance of flowers spreads only in the direction of wind. The fragrance of flowers spreads only in the direction of wind, but the goodness of a person spreads in all the directions. Today, we have such an inspiring personality who undoubtedly is a living proof and example of a humanity. We are very fortunate to have Pujya Babaji with us, our go to the Babaji on this auspicious day. On the behalf of our MTPS family, we want to worship and serve flowers at the feet of Pujya Babaji with a prayer to please bless us so that we all work together for all-round development of our students. May our students get success at the height of moon and stars. May I request Dr. Gaba ma'am to please escort our Param Pujya Babaji as well as Mahamandaleshwar Dr. Swami Shri Shyamdas Ji Maharaj Ji, Honorable Professor Suresh Chandra Sharma Ji, to the idol of Maa Saraswati. शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया है अंधकार या अज्ञान, और रूप का अर्थ किया गया है उसका निरोधन। गुरु को गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह अज्ञान रूपी तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहते हैं। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान कर दिया गया है। शास्त्र वाक्य में गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा जाता है क्योंकि वह शिष्य को नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है। One tree can start a forest. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can whip out darkness. A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the need of the others is an art. Our principal, Dr. Gaba ma'am, does not set out to be a leader, but becomes a special one
by the equality of her action and integrity of intent. The quotation I said is very much dear to our principal ma'am. You are our leader. You show motherly love and give fatherly confidence. Your endless care, guidance and support prove that you are a great leader. We are really blessed to have your principal like you. With a thankful heart, I would like to invite you to please come on stage. First of all, I bow myself before His Holiness, Adorable, Divine Soul, Baba Kalyan Das Ji Maharaj. A very energetic and good afternoon to all of you present here. I welcome His Holiness Babaji, our Chief Guest, Mahamandaleshwar Dr. Swami Shyam Das Ji Maharaj, all the saints, school management members, MKPS staff and my dear students on this occasion of Guru Purnima celebration. What should I say about our Honorable His Holiness Baba Shri Kalyan Das Ji? I don't have any word to express about Babaji. Today I am not welcoming Babaji as a principal, but as a disciple of him. I feel blessed and proud that my Guru is not my guide in my spiritual life, but also in my professional life. I welcome Babaji on the behalf of MKPS family. It's a proud privilege to welcome our chief guest, Mahamandaleshwar Dr. Swami Shyam Das Ji Maharaj of Gita Dham, Jabalpur. He is one of the renowned sons of Jabalpur. He is also crowned with Ram Rangi Dwaracharya, means Jagat Guru title by Saint Jude of Jabalpur. I welcome our Honorable Managing Trustee, MKPS, Swami Shri Himadri Muniji, the most dedicated and the hard-working saint of Kalyan Ashram, Amarkantar. I welcome Swami Shri Jagdishanand Ji, School Manager MKPS. He is our support system. He is available for the school round the globe. Now I welcome Professor Suresh Chandra Sharma Ji, Director MKPS, and Mrs. Sharma, our beloved Datu, the most learned, knowledgeable, kind-hearted, expert of different languages, and down-to-earth man. I welcome the most energetic, very charming, full of love, young lady, Dr. Shashi Gulbe, Deputy Director, MKPS. We call her Delhi Wali Shashi Media. I welcome Mahan Shri Hanuman Das Ji, Swami Shri Omkareshwaran Ji, all the trustees of Kalyan Ashram, other eminent personalities, and sons of different ashrams present here. I welcome all the school management committee members on the behalf of MKPS. Today we have with us Shri Sukhdev Singh Grewal Ji, Shri Bhagat Kumar Mitwani Ji, Mr. Gopal Agarwal, Mr. Pawan Verma, Mr. Amit Mitwani, Mr. Ajay Deswal, Dr. Sukant Vishwas, Mrs. Alka Parmania, Mrs. Mamta Agarwal, Mrs. Shruti Sharma, Mrs. Gudiya Rathore, Mrs. Shilpa Jain, Mrs. Shweta Goyal, Mrs. Neha Gonka, Mrs. Neha Goyal, Mrs. Kushalya Devi, Professor Dr. Anil Kashyap, Mrs. Anil Kashyap, Babaji disciple, Shri Pritam Singh Ji, and all the other members present here. I welcome you all. We are very lucky we have got such a supportive team of school management who are eager to help whenever required. Respected parents, MKPS staff, dear students, as a part of this
school function. It is believed that a person is blind without a teacher. A mother is the first teacher of a child, but after that, a guru becomes his or her second mother. The Shastras proclaim the human being is born twice, Dvija, first by the union of mother and father, and second, when he accepted by a bona fide guru, wherever he acted as his father, and delivered him with the help of Ma Gayatri, which is personification of Vedic knowledge. The Vedic injunction says that in order to learn the transcendental science, one must approach the bona fide spiritual master and disciplined successor, who is fixed in the absolute truth. Thus, it has been enjoined here that in order to receive that transcendental knowledge, one must approach to the real guru. What about you? To yourself, along the way, there have been many teachers, many guides, those who taught you English, math, science, and so on. But particular day is more than just a teacher of mind or intellective organ. This is the day when we honor the teacher who brings our fullness. The full moon, usually in July, is dedicated to the day of Sadguru. It is really a day of gratitude. But today is the day to recognize the thing they didn't work. From where we started, where was I, and where and how far I come along the way. Day of showing gratitude to the Master. Guru is not a body, it is an element, the tattva, the grace that will fill the room and the space as he moves. Be in that space. Once again, on the behalf of Ma Kalyanika Parivar, I welcome all of you on this Guru Purnima event. I am lucky that Babaji has given me the responsibility to run Ma Kalyanika Public School. I assure you that I will try my level best to fulfill the dream of Babaji by my body, mind, heart, and soul. We are lucky that we got such a supportive team of the teachers who are present here, and from last many days they are going to work with us. Especially all the teachers, I want to give thanks to each and everyone present here, directly or indirectly, who are helping to make this program in reality. Especially I want to thank Amit sir, Mayank sir, Sunny sir, and Nigam sir. Once again, on the behalf of school, I welcome you all. Jai Gurudev. Next event. May I request to most respected Swami Sri Omkareshwar Ji to please come on stage and say a few words. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये अभी तक चला यहाँ पर कार्यक्रम, उनको देखकर हमको इतने प्रसन्न लगा जो कि सोच के बाहर। एक साल पहले मैं वहीं पर था, जो कि ये हॉल इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन इस बार इतने अच्छा देखकर मैं स्वामी जी को सादर अभिनंदन देता हूँ। और आज हाँ, मुझे स्वामी जी ने बोले, ओंकारानंद जी, आई वांट टू टेल यू माय नेम इज by mistake it became Omkareshwaranand, something like this, but it's supposed to be Omkaranand. And yesterday evening, Swami told me, Omkaranand ji, you have to speak something in the school, but I don't know what to speak. Now you go and tell something which is most useful to the kids. So I decided what to speak. So I decided to tell you a story. ये स्टोरी ऐसा है, बच्चे आप सभी बंदर को देखे हो? I am asking the kids, have you seen the monkey? देखे हो? अच्छा, आपको पता है monkey को कैसे पकड़ा जाता है? कैसे पकड़ते हैं लोग जो बंदर को खिलाते हैं ना? कैसे पकड़ते हैं? बंदर को पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका यूज किया जाता है, लेकिन I was not prepared for that, but I want to show you. Look. ये नारियल को इस तरीके से आगे से थोड़ा सा काट कर पकड़ना है, जैसे पकड़ लेगा और हाथ निकलेगा नहीं, वो चिल्लाएगा, जैसे चिल्लाएगा दूर से बंदर को पकड़ने वाले खड़े रहते हैं, वो आएंगे बंदर को पकड़ लेंगे।
तो ये होता है बंदर पकड़ने का अच्छा सा आसान सा तरीका। तो इसके बाद क्या हुआ बंदर के साथ? और ही लॉस्ट हिज फ्रीडम। बंदर में जंगल में घूमना, आराम से एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जाना, क्या मजा ले रहा था जंगल के अंदर, वो अपना फ्रीडम खो लेता है। क्या वह है जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान दे, हमारे जीवन की हर समस्या का निदान दे। लेकिन आज जो विद्या पढ़ाई जा रही है वह लोगों को समस्याएं देती है, बेरोजगारी दे रही है। और आजकल यही कहा जाता है शिक्षित बेरोजगार। जितने लोग शिक्षित हैं वो बेरोजगार, अशिक्षित कोई भी बेरोजगार नहीं है। अशिक्षित कोई ना कोई काम ढूंढ लेता है और वो अपनी योग्यता के अनुसार कर लेता है। तो विद्या तो ये हो कि जो हम स्वयं भी बेरोजगार न रहें और दूसरों को भी बेरोजगार न रहने दें। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर यह आयोजन है। कभी मौका मिला वैसे यहाँ के ये भवन देखकर, यहाँ का माहौल देखकर, वातावरण देखकर, यहाँ के स्टाफ की कार्यशैली देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। पूज्य बाबा जी महाराज के पावन संरक्षण में माँ पराम्बा भगवती नर्मदा जी के इस पार्श्व भाग में बची हुई बेंगालुरु की इस दिव्य स्थली पर माँ कल्याणी का शिक्षा निकेतन के इस दिव्य सभागार में जो विद्यालय के माध्यम से मनाई जा रही है गुरु पर्व के अवसर पर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे इस विद्यालय के नन्हे से बच्चों के द्वारा यह छोटी सी एक नृत्य नाटिकाएं जो दिखाई गई, यह बड़ी प्रशंसनीय है। प्राचीन समय में हमारे भारत के मनीषियों ने गहन साधना के माध्यम से जब खोज की तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति के मस्तक में अनंत संभावनाएं विद्यमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चेतना, जो ऊर्जा है, वह मनुष्य के मस्तक में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जिसको उपनिषदों की भाषा में अरोरणीया महतो महिया, एक जैसे नन्हा सा वट के बीच में विशाल वर्ग का वृक्ष समाया हुआ है, उसी तरह से एक नन्हे से मस्तक में अणुमात्र एक छोटे से रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। आवश्यकता है उसको विकसित करने की, आवश्यकता है उसको जान लेने की, आवश्यकता है कि वह कौन सी ऐसी विधाएं हैं कि जिनके माध्यम से हम उसको जगा सकें, उसको जागृत कर सकें, जान सकें। आज का भौतिक विज्ञान भी इस बात को कह रहा है, मनुष्य के मस्तक में अनेक संभावनाएं विद्यमान है, जिनकी संख्या अरबों खरबों की संख्या में है, पर मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ 10 से 15% की कोशिकाओं का उपयोग कर पाता है, नहीं तो वह निरर्थक हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। अगर मनुष्य 20 से 25, 30, 40 तक संभावनाओं को विकसित करे तो वह महापुरुष हो जाता है। अभी हमारे बच्चों ने एक बड़ी सुंदर शिक्षाप्रद
एक नाटिका दिखाना। कृष्ण संजीवनी के आश्रम में जाते हैं। 64 दिनों में वो 64 कलाओं की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात हमारी प्राचीन परंपराओं में जब विद्यार्थी गुरुकुल से बाहर जाता था तो गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में वो प्रार्थना करता था। तो सांदीपनी के आश्रम में सांदीपनी ऋषि के पास जाकर के कृष्ण ने भी कहा, मैंने आपसे विद्या ग्रहण की है, आप हमसे कुछ गुरुदक्षिणा के रूप में मांगे। सांदीपनी पत्नी अपने पुत्र को हमेशा याद करती थी जो समुद्र की प्रबल धारा में बह चुका था। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। सांदीपनी ने तो कुछ नहीं मांगा, किंतु उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को वापस मांगा। और कृष्ण, आप लोगों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से इसको देखा कि कृष्ण ने उनके पुत्र को वापस लाया। अगर आज का भौतिक विज्ञान इस चीज, भौतिक वैज्ञानिकों के सामने इस बात को कहा जाए वो कहेगा ये कल्पित बात हो सकती है, यह कभी संभव नहीं। जिसकी मृत्यु हो जाती है वो कभी फिर लौट के आता नहीं है। और संसार के विविध प्रसंगों में भी यह देखा गया है, जिसकी मृत्यु हो जाती है वो बाद में लौट करके कभी नहीं आता है। किंतु मनुष्य के मस्तक में ईश्वरत्व की जो प्रबल संभावनाएं विद्यमान है, अगर उसको जगा दिया जाए असंभव भी संभव होता हुआ देखा गया है। सुंदर नृत्य नाटिका के माध्यम से तो इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर में भी वो ऊर्जा विद्यमान है, हमारे अंदर में भी वो चेतना विद्यमान है। सिर्फ आवश्यकता है उस चेतना को जगाने की, और वह चेतना जगती है शिक्षा के माध्यम से। जैसे हमारे पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य श्याम देवाचार्य जी ने अभी आपको बताया, सा विद्या बोलो, वह विद्या जो मनुष्य को हर बंधनों से मुक्त करती है, वह विद्या जो मानवता को ऊंचाइयों की शिखर पर ले जा रही है, वह शिक्षा जो मानव मनुष्य को अपने संस्कार हैं उनको जगाने की जो है प्रेरणा देगी, तो उसी का नाम विद्या है। अभी हमको जाना भी है, अनेक बार हमको फिर यहाँ आना ही पर देखने के लिए आएंगे, फिर आप लोगों के बीच में हम चर्चा करेंगे। किंतु इस विद्यालय को देख करके हम हेमांगी मुनि जी और जगदीशानंद जी और भी यहाँ के जितने रहवासी लोग हैं, उनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह जब दिव्य एक गुरुकुलम सुंदर विद्यालय सरस्वती मंदिर यहाँ निर्माण हुआ है, इसमें छोटे से बच्चों की वह प्रतिभाएं विकसित हो रही हैं, चाहे वह पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वह नृत्य नाटिकाओं के रूप में हो, यह भी एक कला है। जीवन का सर्वांगीण विकास तब होता है तब जीवन में शांगो पांग हमारे अंदर में वह सब कुछ चीज विकसित हो जाए, जिससे मानव महामानवता की ओर बढ़ जाता है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ की व्यवस्था को देख करके, इसकी सफाई को देख करके, सुंदरता को देख करके, विशेषतः यहाँ के जो प्राचार्य गण हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, इनके अथक परिश्रम को देख करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आने वाले में समय में यहाँ से अच्छी प्रतिभाएं निकलेंगी। देखो, आज के नन्हे से बच्चे कल भारत के भाग्य विधाता बनेंगे। इन्हीं बच्चों में कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा वैज्ञानिक भी बनेगा।
कोई इस देश की बागडोर संभालने वाला अच्छा नेतृत्व भी मिलेगा। तो आवश्यकता है इन बच्चों के अंदर हर तरह के कलाओं का इनको ज्ञान हो, अच्छी पढ़ाई हो, और पढ़ाई में ये जरूर मन लगाएं, ऐसे संस्कार इनके अंदर में विकसित हो। साथ ही हमारे स्वामी ओंकारानंद जी ने, जो विश्व के अनेक देशों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, बोलते भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी एक कहानी बच्चों को सुनाई कि बंदर कैसे पकड़ा जाता है। बंदर कहीं टिकता नहीं है। बंदर का उदाहरण वेदांत में लिखा गया है, मन को बंदर का रूप बताया गया है। जैसे बंदर एक डाली पर टिकता नहीं, एक तरफ स्थिर नहीं होता है, उसी तरह यह मन भी कहीं पे एक जगह पर लगता नहीं है। किंतु उसके पकड़ने की विधा क्या है कि बस वो नारियल, जैसे उन्होंने नारियल दिखाया, आपको बताया, वैसे बंदर को पकड़ लिया जाता है। इसी तरह से देखें, जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, जो आज वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। किंतु विज्ञान ने जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है, वह व्यक्ति के सृजन का भी माध्यम है, व्यक्ति को उच्च से उच्च स्तर स्थान पर ले जाने का माध्यम है। और वही ऊर्जा अगर जब विकृत हो जाती है, अणु और परमाणु के रूप में विध्वंसक बन करके समाज को समाप्त करने के रास्ते पर ही ले जाती है। जो टेक्नोलॉजी मोबाइल के माध्यम से, जो टेक्नोलॉजी आज बच्चों के हाथ में चली गई है, वो उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। पर बच्चों का मन क्या होता है, बंदर एक जगह पर स्थिर नहीं होता। उसी तरह से बच्चों की उंगलियां जो बटन पर दबती रहती हैं, उससे अनेक ऐसे दृश्य आते हैं जो बच्चों को चंचल कर देते हैं, जो उनकी विकास है उसकी गति को अवरुद्ध करके वो अनेक तरह के जो है कार्यों में लग जाते हैं। उनका रोशनी उम्र का भी दोष है। आजकल टीवी में भी हम देखते हैं, कार्टून फिल्में आती हैं, बच्चे उसको बहुत अधिक देखते हैं। बहुत से घरों में तो जब बच्चों की परीक्षा होती है, माता पिता टीवी को ही खराब कर देते हैं, कहीं ये कार्टून फिल्म न देखने लगते हैं, कहीं इनकी पढ़ाई में विघ्न हो। बड़ी सुंदर दृष्टि हमारे ओंकारानंद जी ने दी। जितना हो सके कम से कम उपयोग, यह बच्चे लोग तो नहीं समझेंगे, किंतु उनके माता पिता, उनके अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि उनको कम से कम उपयोग करने दें और अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई में, शिक्षा में उनको लगाए रखें। जब तक जीवन में संस्कार नहीं होंगे, तब तक संस्कृति के प्रति आस्था नहीं होगी। जब तक संस्कृति के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक हम अपने राष्ट्रीय गौरव को समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम राष्ट्रीय गौरव को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपने देश को सुरक्षित भी नहीं रह पाएंगे, और इसकी परम आवश्यकता है। बड़ा सुंदर कार्यक्रम देखा, और जो है सभी को हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं। शिक्षकों का अथक परिश्रम और इतना सुंदर शिक्षा की व्यवस्था, हेमांगी मुनि जी, जगदीश आनंद और भी जो उनके सहयोगी है, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सब लोगों को खूब खूब आशीर्वाद। ये जो है यह शिक्षा हमको पुनर्भारतीयता की ओर ले जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बस इतना ही कहते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद, और अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व और जो है इस विद्यालय की सुंदर उन्नति की कामना करते हुए हरिओम तत्सत। हरिओम।